गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जो अपन गुरबाणी गुरु विच गुरु साहिबाना ने, भगतां ने, संतां साधुआं ने, गुरसिखां ने, सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने उपदेश बख्शिश कीता। जिन्ना भी उपदेश दिता जा रहा है सारा अपने मन नूं दिता जांदा। हड़ भुले हुए मन नूं शब्दां दे विच समझाया गया भी किवें इस लोक दे विच आके साडा मन है जिहड़ा भुल जांदा माया दे घर विच आके परमात्मा नूं, सच नूं, नाम नूं, हुक्म नूं। हुण किवें भुला होया मन फिर समझे खेल नूं सारी नूं। उहदे वास्ते फिर सानूं समझाउंदे भी ये शब्द दोबारा समझ, गुरु की मत द्वारा इनू समझाया जाता। सतगुरु फरमाउंदे भूला मन समझे गुर शब्दी। गुरु के शब्द द्वारा इनू समझाया जाता भी इस लोक दे विच साडा आउण दा की मकसद, की मनोरथ है। सानू फिर समझाउंदे भी तुसी परमात्मा दा सिमरन करो, उहदी भगती करो। भगती वास्ते सानू ये मानस देही मिली। रमाउंदे ने भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाभ। बई मानस जामे का होर कोई लाभ नहीं, ये सिर्फ यही लाभ है, ये असी भगती कर सकते। ये मानस जामे असी सदा लई जीवन मुक्त हो सकते। आपदा जन्म मरण का जिहड़ा गेड़ है जो असी वार वार आकारां दे विच आउंदे जांदे, साडा ये हुण आवागमन जिहड़ा ये खत्म हो सकता जे हुण असी गुरु की मत लईए, जे असी सोझी लईए। हुण महाराज फिर सानू समझाउंदे भी दो राह, एक रस्ता लिभदा जिहड़ा प्रेम दा मार्ग, मालक नूं मिलापदा रस्ता। दूसरा रास्ता धाप दा
ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ, ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੈ ਬਤਾਵ ਦੋਇ ਰਾਹੋ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਿਵਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਧਾਰ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਝੂਠ, ਬੇਕਾਰ, ਮਹਾ ਲੋਭ, ਧਰੋ, ਇਹ ਆਹੂੰ ਜਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜੋਗ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੂਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਮਾਰਗ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਭੇਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਵਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਲੂਟੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਆਰੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਅਗਨ 'ਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਵਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਥ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ,
महाराज फरमाउंदे एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मलंत जम त्रास मिटाई। भी जो एक उत्तम पंथ है परमात्मा नूं मिलाप दा रस्ता, फिर उत्तम पंथ का सानू संत जन भेज देंदे, साध संगत च आके सानू भेद खुलदा। फिर सानू समझाउंदे भी जिहड़े गुरमुख सानू हरि दा मार्ग दसदे, मालक नूं मिलाप दा रस्ता, ये पंथ दसदे, फिर असीं उन्हां दे बचनां नूं मन के फिर ये रस्ते उत्ते चलना हुंदा। फिर असीं उन्हां दे चरनी लगना हुंदा। चरण की गुरमुखां दे बचन, असीं बचनां नूं मनना हुंदा, कमाउणा हुंदा। महाराज ताइयों फरमाउंदे हर का पंथ कोऊ बतावे हों ताकि पाई लागी। भी मैनू कोई वो हरी दा पंथ मालक नूं मिलाप दा रस्ता दसे ते मैं उहदे चरनी लगा, उहदे वचनां नूं मन्नां ते वचनां नूं कमावां। फिर आवा नूं समझाउंदे भी ये पंथ उत्ते चलो। जिमें हुण ना जीवन नूं भेद होण करके सत संगत ना करन करके उहनूं पंथ दा ज्ञान नहीं है, भेद नहीं भी पंथ कहिंदे किहनूं। जिमें आम जीव कह दिंदे साडा पंथ निराला, साडा पंथ वखरा। हुण पंथ की है? पंथ रस्ता है परमात्मा नूं मिलाप दा, साडे घर नूं जाण दा। जेदा असी इस मार्ग के उत्ते चलते हैं, गुरबाणी गुरु के दसे वो पंथ के उत्ते चलते हैं, फिर तो साडा निराला पंथ हो गया। क्योंकि संसारी जिहड़े पंथ ते चलते उन्होंने धाप दा पंथ कहते, धाप दा रस्ता। गुरमुख जिहड़े पंथ ते चलते उन्होंने लिव दा मार्ग कहते, संत मार्ग कहते। इस वास्ते फिर आपां नूं समझाउंदे भी जे असीं ये पंथ नाल जुड़ांगे फिर असीं आपदे जीवन दा लाहा कट लांगे, फिर असीं मालक नाल मिलाप कर लांगे, असीं सदा वास्ते जीवन मुक्त हो जांगे। जे असीं ये पंथ नाल जुड़ांगे, रस्ते नाल जुड़ांगे गुरबाणी गुरु दे दसे होए थे। जे हुण असीं ये पंथ की विचार ही नहीं करांगे, ये रस्ते ते चलांगे नहीं, तो फिर असीं आपस विच ही लड़ी जावांगे। फिर असीं एक दूसरे नाल वैर विरोध करी जावांगे ते लड़ाइयां झगड़े करी जावांगे। ते महाराज कहंदे जे तुसीं वाद विवाद च ही पए रहे फिर तुसीं ये मत जाणिओ भी तुसीं परमात्मा नाल मिलाप कर लोगे। सतगुरु फरमाउंदे वाद विवाद नाही प्रभ मेला। भी वाद विवाद दे विच पै के मालक दे नाल मेल नहीं हुंदा, क्योंकि ये सानू वाद विवाद जिहड़ा ये छड्डना पैंदा। संत मार्ग ते सानू प्रेम ही प्रेम सिखाया जांदा। जिहड़े फिर गुरमुख इस पंथ दे उत्ते चलदे संत मार्ग ते उन्होंने फिर वडभागी आखे। महाराज फरमाउंदे संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। बई कोई वड्डे भागां वाले गुरमुख ये पंथ नाल जुड़दे ते पंथ दे उत्ते चलदे। फिर इस वास्ते आपां नूं समझाउंदे भी जे असीं गुरबाणी गुरु के दसे मार्ग के उत्ते चलांगे, पंथ के उत्ते चलांगे जिहड़ा कि सानू सतगुरु कह रहे भी तुसीं चलो। फरमाउंदे गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। भी जो सानू गुरबाणी गुरु पंथ दस रहे, रस्ता दस रहे, इन्हां दे दसे हुए पंथ के उत्ते चलो, इन्हां दे दसे हुए मार्ग के उत्ते चलो। जे असी चलांगे तो असी सदा सुखी हो जाएंगे।
जे हुण जीव गुरबाणी गुरु के दसे मुताबक नहीं चलता, नहीं गुरु की मत लेंदा, नहीं आपदी सियाणप आपदी मत छड्डदा, फिर महाराज कहते भी सतगुर नूं कोई दोष नहीं है। सच्चा सतगुरु की करे जदों सिखां ने कहना ही नहीं मनना, जदों सिखां ने पंथ ते चलना ही नहीं। फिर इस वास्ते च महाराज फरमाउंदे कबीर सच्चा सतगुर क्या करे, जद सिखां माहे चूक, देख न लगे जं बास बजाइए फूक। बई फिर सच्चा सतगुरु की करे जदों सिखां ने महाराज कहते भी आखे नहीं लगना, जदों असी इन्हां दे दसे हुए पंथ ते चलांगे नहीं तो फिर साडा जीवन नहीं बदलेगा। साडा जिहड़ा मन है इहदे विच कोई बदलाव नहीं आएगा जद तक सानू गुरु के बचनों ते प्रतीत नहीं आउंदी, भरोसा नहीं आउंदा, जद तक असी गुरु दे आखे नहीं लगते, इन्हां दा वचन नहीं मनते, सिमरन नहीं करते, फिर सानू कहते भी जब तक सानू सतगुर ते प्रतीत ही नहीं, बई फिर बेशक असी सवेरे शाम की 100 वारी जी आवे जावे मथा टेके, जे वह वचन नहीं मानता वह जीवन जोड़ा बदल नहीं लगे, वो अंदर कोई बदलाव नहीं आने लगे। महाराज इसलिए फरमाउंदे सतगुर की प्रतीत न आई है, शब्द न लागो भाओ, उसनों सुख न उपजे भावें 100 गेड़ा हो जाओ। महाराज कहते भी वो जीव सुखी नहीं हो सकता भावें वो 100 बारी आवे जावे, जब तक वो वचन नहीं मानता, जब तक वो कहना नहीं मानता। हुण आपां नूं फिर समझाउंदे भी साडा जिहड़ा मन है इस लोक दे विच इहदे ते मैल चढ़ जांदी, विचारां दी, सैंसी फिकरां दी, चिंतावां दी, दुविधा दी। हुण इह मैल साडी तां लथेगी जे असीं सिमरन करांगे। सानू फिर इसलिए सतगुरु कहते भी गुरसिखो भी तुसी बोलो, मुख द्वारा बोलो, सिमरन करो। भी जदों तुसी परमात्मा का सिमरन करोगे तुहाडे मन ते जिहड़ी पापां दी मैल लगी है मैल लै जाएगी। महाराज फरमाउंदे गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लै जाई। भी गुरसिखो बोलो, वाहिगुरू बोलो, हर बोलो। जदों असी बोलांगे तो कहते मन तो पापां दी मैल लै जाएगी। जदों मन तो मैल लथेगी मन निर्मल हो जाएगी, तो जदों मन निर्मल होएगा फिर निर्मल मन ही परमात्मा दे नाल मिलाप कर सकदा, निर्मल मन ही अपने घर जा सकदा। जब तक मन निर्मल नहीं उन्ना समय घर नहीं जा सकता, मालक नूं मिल नहीं सकता। महाराज इसलिए फरमाउंदे मेरा प्रभ सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। बई परमात्मा निर्मल है तो जदों साडा मन निर्मल होएगा फिर ही मिल सकता, फिर ही यह आपदे जीवन का लाहा खट सकता जे निर्मल होएगा। जे साडा मन ही मैला है फिर असी ये तन नूं जिन्ना मर्जी सवारी चलीए, जिन्ना मर्जी इहदे ते हार शिंगार करी चलीए, जिन्ने मर्जी सोहणे कपड़े पाई चलीए। महाराज कहंदे मन मैले तां सब कुछ मैला, तन धोते मन हशा ना होए। जगत भरम भुलाया बिरला बूझे कोई। सतगुरु कहते भी जगत ऐसा भरम च भुला है भी जिहड़ा शरीर तन इनू तो नमाई जाता, ये तन नूं शिंगारी जाता, पर
जे मन मैला तो सच्चे पातशाह कहते सब कुछ ही मैला। ताइयों सतगुरु कहते भी सोचे वो नहीं जिहड़े कला पिंडे नूं ही धोंदे, सोचे वो गुरमुख ने, वो मन सोचे ने जिन्हां दे मन दे विच सच वस गया, परमात्मा वस गई। फरमाउंदे ने सोचे ना आखियन बहन जे पिंडा धोए, सोचे सही नानका जिन मन वसिया सोई। भी सोचे वो नहीं जिहड़े सिर पिंडे नूं धोंदे, सोचे वो ने जिन्हां दे मन च सच वसी। जे हुण असीं बाहरों शरीर नूं तां धोई जाने हैं, जे साडा मन मैला, फिर सतगुरु कहते भी असीं ये जीवन की बाजी नूं हार जाण। जीओ मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जीओ तो मैले, तिन्नी जन्म जुए हारे। भी ये जिहड़ा सानूं जन्म रतन मिलिया पदार्थ के रूप दे विच, जे असीं मन नूं ना शुद्ध कीता ते फिर साडा जिहड़ा मन है, सच्चे पातशाह कहते भी वो वापस फिर मुड़ जी, फिर असीं आकारां दे विच चले जावांगे। इस वास्ते फिर सानूं समझाउंदे भी असीं मन नूं शुद्ध कर, मन नूं धोना। हुण मन नूं धोण वास्ते सानूं सिमरन करना पैना। जिउं जिउं असीं मुख द्वारा रसना द्वारा उचारण करांगे, जिउं जिउं असीं मालक दे परमात्मा दे गुण गावांगे, ते उहदे साडा जिहड़ा मन है वो शुद्ध हुंदा जाएगा, धोता जाएगा। इस वास्ते फिर आपां नूं सच्चे पातशाह समझाउंदे भी तुसीं बोलो, भी रसना द्वारा मालक दे गुण गावो, ते ज्यों ज्यों गावांगे ते उहदे मन तो मैल उतरदी जाएगी। फरमाउंदे ने रसना गुण गावे हर तेरे, मिटे कमाते औगण मेरे। भी ज्यों ज्यों साडी रसना मालक दे गुण गाउंदी ते उहदे साडे उत्तों औगुणां दी मैल लैंदी। हुण जे असीं सिमरन करांगे ते फिर मन दी मैल लथेगी। हुणे मन नूं धोण दी जुगती है, तरीका। जिवें आपां ये जिहड़ा शरीर है तन, ये तन साडा मैला हो जांदा, कपड़ा पहनदे आपां कपड़ा मैला हो जांदा। हुण उहनूं आपां कपड़े नूं ते तन नूं पानी ते साबण दा इस्तेमाल करके धो लैंदे ते इहदी मैल लै जांदी। हुण जिहड़ी साडी मत मैली हो गई, जिहड़ा साडा मन मैला हो गया, हुण मन वास्ते ऐसा कोई पानी जां ऐसा कोई साबण नहीं जिहदे द्वारा साडा मन धोता जावे, जिहदे द्वारा साडा मन शुद्ध हो जाए। फिर आपां नूं इसलिए गुरु नानक पातशाह रोज़ समझाउंदे भी जिहड़ी साडी मत मैली हुई मन, उहने नाम द्वारा धोता जाना। ताइयों सानूं रोज़ फरमाउंदे भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सखे, मूत भलीती कपड़ होए दे साबुन लईए हो धोई। भरिए मत पापां के संग ओ धोपे नामे के रंग। भी जिहड़ा साडा मन मैला हो गया, इन्हें सिमरन करके, इन्हें सतसंगत करके धोता जाना, इन्हें नाम द्वारा धोता जाना, उदों धोता नहीं जांदा। हुण जदों आपां फिर सिमरन करदे हैं, ये सिमरन करके असीं मन दा इशनान करदे हां ते साडा मन ते मन दा जिहड़ा तन है दोवें धोते जांदे। मारे फरमाउंदे कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भई अरोगा। भी जदों असीं सिमरन करांगे, साडा मन ते मन दा जिहड़ा तन है सुखम, वो दोवें रोग रहित हो जाणगे। जदों फिर आपां गुरबाणी गुरु दी विचार करते,
एक जन आप विचार करते हैं, फिर आप बाकी ध्यान नाल सुनते हैं। हुण ये शब्द ही विचार दे नाल भी साडा मन ते मन दा तन धोते जाते। महाराज फरमाउंदे मन तन धोवे शब्द विचारी। ये जदों असी शब्द ही विचार करांगे सुनांगे साडा मन ते मन दा तन धोता जाएगा। सारी गुरबाणी गुरु विच अमृत ते अमृतमई बाणी दी जदों असी विचार करते साडे मन नूं धो दिंदी। महाराज ताइयों फरमाउंदे बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी। भी सारी गुरबाणी गुरु विच अमृत, सारी गुरबाणी ये सच ते नाम दी महिमा कीती, उस्तत कीती, वडियाई कीती। इस वास्ते फिर इनू भी सच्ची बाणी आख्या, क्योंकि सच ते नाम दी महिमा जो गुरु साहब उस्तत कर रहे सच ते नाम दी, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो कह रहे हैं सानू सच कह रहे। इसलिए आपनू फरमाउंदे आप सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। भी गुरसिखो आवो गुरबाणी गुरु दी विचार करो, विचार सुनो करो, ते सारी गुरबाणी च अमृत है, तो साडा मन धोता जाएगा, साडा मन शुद्ध हो जाएगा। भी जो सानू गुरबाणी गुरु कह रहे बिल्कुल सत कह रहे, तो इनू सत सत करके मनो। फरमाउंदे सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढाए। ये सतगुरां दी बाणी नूं सत सत करके जानो। जो सानू कह रहे बिल्कुल सच कह रहे। जदों असी गुरबाणी गुरु नूं विचारांगे, सत सत करके मनांगे, ते सानू नाम दे नाल जोड़ देणगे। जिस शब्द गुरु नालों साडी लिव टुटी है, उस शब्द गुरु दे ले जाके साडे मन नूं सन्मुख खड़ा कर देंदे। वाहियों महाराज कहंदे गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारी। भी जिहड़ा सिख मनदा है उहनूं परतख शब्द गुरु दे ले जाके सन्मुख खड़ा कर देंदे, टुटी हुई गंढ देंदे, जोड़ देंदे। हुण आपां नूं फिर इसलिए समझाउंदे भी जदों असीं शब्द ही विचार करांगे, फिर असीं ये दुरमत दी अगन तो बच सकदे। जिवें संसार 'च आपां देखदे भी जिहड़े जीव धात दे रस्ते ते चलदे, वो दुरमत दी अगन दे विच जल रहे ने, सड़ रहे ने। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦੀ अगन साड़ रही दुरमत थी। महाराज कहते ये तो गुरमुख उभरते अगन तो बचते जिहड़े गुरबाणी गुरु की शब्द की विचार करते। फरमाउंदे ने दुरमत अगन जगत पर जारे, सो उभरे जो गुर शब्द विचारे। भी जदों असी शब्द की विचार करांगे, नाम की विचार करांगे, गुरबाणी गुरु की विचार करांगे, फिर असी ये दुरमत की अगन तो उभर जाएंगे, असी उपर उठ जाएंगे। जे हुण असी गुरबाणी गुरु का ओट आसरा नहीं लवांगे, नहीं शब्द की विचार करांगे, नहीं संगत करांगे, नहीं सिमरन करांगे, फिर ये अगन सानू साड़ेगी। ते वो फिर आप देखते संसार दे विच भी किवें जीवां दे मनां दे विच कलेश, किवें तन च कलेश, किवें परिवार च कलेश, लड़ाइयां झगड़े वैर विरोध, ते किवें दुरमत दी अगन फिर उन्हां नूं साड़दी अंदरों। हुण इहदा कारण गुरु नानक दा घर सानूं इहो दसदा है भी जो असी गुरु घर आके लेना सी, वो असी सतगुरां तो ज्ञान लिया नहीं, सोझी लई नहीं।
जे अज साडे मन अशांत ने, जे साडे मन दुखी ने, जे साडे मनां च कला कलेश है, साडे परिवारां च कला कलेश, असी दुखी हो रहे। दुख का कारण सानू सतगुरु इहो दसदे भी असी गुरु की मत नहीं लई। जो असी गुरु घर आके ब्रह्म का ज्ञान लेना सी, वो असी ब्रह्म का ज्ञान नहीं लिया सतगुरों तो। जे असी ये ब्रह्म का ज्ञान ले लेंदे, जिन्होंने ये ज्ञान हो गया उन्होंने तो आपां दसिया भी उन्होंने मन सी जिहड़ा वो निर्मल हो गया, वो शीतल हो गया, तो वो ठंडा ठार हो गया। जिस दुरमत की अगन दे विच सारा जग सड़दा है, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान हो गया उन्होंने ये अगन पाउंदी हुई नहीं, उन्होंने नहीं सड़ती। उन्होंने मन शीतल ने, उन्होंने मन ठंडे ने। इसे वास्ते जी बाबा कबीर जी फरमाउंदे, कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान, जैन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान। वो कहते भी साडा मन जिहड़ा वो शीतल हो गया, ठंडा हो गया जदों सानू ब्रह्म का ज्ञान हो गया। कहते हुण सारी गुरबाणी गुरु 1430 अंग ये सारा ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या। हुण जे असी ये ब्रह्म का ज्ञान सतगुरां तो लवांगे तो साडे मन शीतल हो जाणगे। जे हुण असी ये ज्ञान नहीं लेंदे तो ताइयों साडे मन शांत ने, ताइयों दुखी ने। और इस वास्ते फिर सानू सच्चे पातशाह समझाउंदे भी असी जदों गुरु घर आउंदे हाँ, असी संगत दे विच आउंदे हां, असी इसे वास्ते तो आउणा संगत दे विच, गुरु घर आउणा भी साडा मन शीतल होवे, साडा मन ठंडा होवे। जे साडा मन शीतल ही नहीं होया, ठंडा ही नहीं होया, तो क्यों नहीं होया? इहदा कारण की है? इहदा कारण फिर सानू गुरु नानक दा घर इहो दसदा भी सानू पता ही नहीं भी असी गुरु घर लैन की आउणा। असी गुरबाणी गुरु नूं काहदे वास्ते पढ़ना, काहदे वास्ते असी सेवा करनी, काहदे वास्ते असी सिमरन करना। हुण जे जीव सेवा भी करदा, बाणी भी पढ़दा, तो वो संसार दी मंगां ही मंगी जांदा भी मेरी संसार दी आ मंग पूरी हो जाए, मेरी आ इच्छा पूरी हो जाए, मेरा आ काम बन जाए। हुण इहदे नाल तां साडे मन नूं शांति आउणी नहीं। संसार दे विच असी किन्नियां भी मंगां मंग लईए ते किन्ना भी असी धन दौलत इकट्ठी कर लईए, किड्डा वड्डा सानू अहुदा मिल जे, किन्ना साडा संसार विच मान सत्कार हो जे, ते किन्नी साडे कोल धन दौलत होवे, ते किन्ने साडे कोल पदार्थ हो जाण असी इकट्ठे कर लईए। हुण इहदे नाल साडे मन नूं तां नहीं शांति आउणी, साडे मन ने तां नहीं शीतल होना, ठंडा होना। मन तां साडा ठंडा शीतल फेर होएगा जे असी गुरु दी मत लवांगे। हुण इहो कारण भी जीव सारा कुछ करदा भी है, पर करदा आपदी मत दुबारा, गुरु दी मत नहीं लैंदा, पुछदा नहीं सतगुरां तो बई मैं गुरु घर काहदे वास्ते आउणा। वो पहला ही सुखना सुख लैंदा, पहला ही मंग रख के आउंदा, उन्होंने पता नहीं, पुछदा नहीं मैं बाणी नूं काहदे वास्ते पढ़ना, वो पहला ही कोई शर्त रख लैंदा। महाराज फिर इसलिए समझाउंदे भी ये तां जीव का पढ़न का मकसद नहीं भी गुरबाणी गुरु मैनू की कह रहे, सतगुरु की कह रहे, तो जो सतगुरु कह रहे, जो उपदेश दे रहे भी मैं वो उपदेश नूं कमावां, उपदेश नूं मन्ना। ये मकसद नहीं। जीव जदों विच संसार का मकसद रख लें अपने पेट की पूर्ति वास्ते, तो ऐसी अवस्था फिर महाराज इहनूं मूर्ख कहते।
फरमाउंदे मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवे, माया के बिहारी अंतर कपट उधर भरन के ताही पाठ पढ़े गवारी। बई तू तो पाठ भी ताइयों करदा भी पेट नूं भरन वास्ते, पेट की पूर्ति वास्ते, संसार दीयां मंगां वास्ते। तेरा इहदा मकसद ही नहीं पढ़न दा भी सतगुरु मैनूं की कह रहे। और इस वास्ते फिर सानूं समझाउंदे भी जद तक जीव सत्संगत नहीं करता उन्हां समां नूं भेद ही नहीं आउंदा भी मैनूं सतगुरु कहिंदे की ने, की उपदेश कर। ते ना भेद होण करके ताइयों दुखी है, ताइयों अशांत हुंदा। हुण इसलिए सानूं फिर समझाउंदे भी असीं संसार दा तां जिन्ना मर्जी धन इकट्ठा कर लईए तां सुख नहीं, जिन्ना मर्जी असीं संसार दे रंग तमाशे देख लीए तां नहीं सुख, जिन्ना मर्जी असीं घूम फिर आईए परदेसां दे विच चले जाइए कमाइयां करिए तां मन नूं शांति नहीं आउंदी। हुण सौखी मन साडा होवे किवें? कहंदे जे परमात्मा दे गुण गावे, जे सिमरन करे। मारे फरमाउंदे सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे नित नाटे, सुख नाही बहुदेश कमाए, सर्व सुखां हर हर गुण गाए। बई जे तां मन परमात्मा दे गुण गाएगा फिर ये सुखी हो सकता, नहीं तो सुखी नहीं हो सकता। जिन्ना मर्जी ये संसार का साजो समान इकट्ठा कर लवे, जिड्डा मर्जी इनू वड्डा अहुदा मिल जे, संसार का इनू राज भाग भी मिल जे। हुण मारे कहंदे जिहड़ा संसार का राजा है वो राजा भी दुखी है। वो सुखी तां हो सकता जे वो परमात्मा का सिमरन करेगा, जे वो नाम दे नाल जुड़ेगा। नहीं तो ये संसार का राज भाग भी उन्हें सुख नहीं दे सकता, उन्हें फिर भी दुखी रहना। मारे ताइयों फरमाउंदे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है, हर का नाम जपत हुए सुखी है। भी जे किसी ने सारी सृष्टि का राज भी दिता जाए वो राजे ने भी दुखी रहना जे वो नहीं सिमरन करेगा, नहीं गुरु की मत लेगा। ये आपां नूं फिर इसलिए समझाउंदे साडे मन नूं भी जे संसार का राजा वो भी दुखी है, राजे कोल तां कोई धन दौलत की कमी नहीं, नौकर चाकर मान सत्कार दुनियावी पदार्थों की कोई कमी नहीं, पर वो फिर भी दुखी है। और इसलिए फिर साडे मन नूं समझाउंदे भी जे वो राजा भी दुखी है फिर तू किहड़े पदार्थों पिछे भज्या फिरदा, तू काहदे विच सुख लभदा? जे जिहदे कोल हैगा जे तां वो सुखी है फिर तां तू भी सुखी हो जे। पर ये सानूं भरम बनिया रहिंदा जद तक असीं गुरु की मत नहीं लैंदे, साडे नेत्रां 'च ज्ञान का अंजन सुरमा नहीं पाउंदा गुरु, उन्हां समां सानूं भरम बनिया रहिंदा भी फलाना सुखी है जी, भी ओहदी क्या कहने उत्थे, भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ दौलत बड़ा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ बड़ा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ बड़े इकट्ठे ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ दुनिया 'ਚ वाह बड़ी है। जीव समझदा भी जे मेरा भी मैं भी उस तरह पहुँचा भी उत्थे पहुँचा तो लोग मेरी भी वाह करन। हुण ये भरम बनिया रहिंदा जीव नूं भी वो सौखा, भी ਉਹਦੀ बड़ी जीव आओ भगत करदे। ते जदों असीं गुरु की मत लैने, जदों साडे नेत्रां दे विच ज्ञान का अंजन सुरमा पैंदा फिर ये साडा भरम खत्म हुंदा। फिर सानूं पता लगदा भी ये संसार दे विच कि इस अवस्था दे विच गुरु नानक पातशाह ने जाके आखिया, नानक दुखिया सब संसार, भी ये सारा संसार दुखी है ते सुखी सिर्फ वो गुरमुख ने जिहड़े नाम दे नाल जुड़े हुए, जिहड़े परमात्मा दे नाल जुड़े। नहीं तो नाम तो बिना सतगुरु कहते असी सारा संसार देखिए भी किते सुख नहीं।
ਡੇਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਧਨ ਧਨ ਹੋਸ਼ੀ ਛਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੇਠਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ, ਭਰਮ ਕੇ ਪੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬੁਝਾਇਆ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਐਸਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਨ, ਨਿਰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਘੱਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਧਨ, ਉਹ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਸੋਝੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਗ ਮੇਂ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ।
ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਗੁਪਤ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरीके ना गुरमुख प्यारे जदों आप फिर सिमरन करते नाल नाल मन नूं गुरु की मत ज्ञान देंदे, जदों फिर असी ये दुविधा वैर विरोध ईर्खा नफरत हौमे हंकार ये लड़ाइयां झगड़े इन्हां छड्ड दिंने, फिर असी काबल हुंदे हां ये पंथ दे उत्ते चलण वास्ते। जिहड़ा पंथ सानूं सतगुरु दस रहे वो भी जे बड़ी वड्डी मालक की किरपा होवे वो साडे नाल सहाई होवे ते फिर पंथ दे उत्ते चलिया जांदा। हुण इस वास्ते फिर आपां नूं समझाउंदे भी जिहड़ा पंथ असीं भुल चुके हैं, पंथा प्रेम न जानी भुली फिरे गवार, भी वो पंथ नूं जाणो ते वो पंथ दे उत्ते चलो। पंथ ये नहीं भी लड़ाइयां झगड़े करने बैर विरोध करना, सानू ये पंथ नहीं सिखाउंदा। सानू पंथ तां प्रेम दा दस्सिआ गुरु साहब ने, परमात्मा नूं मिलाप दा रस्ता। जिवें आम जी भी कह दिंदे पंथ नहीं बचदा जी सिर देण तो बिना। हुण किहड़ा सिर असीं देना ये पंथ दे उत्ते, साडे मन दा सीस अपना आपा असीं वारना। ताइयों महाराज सच्चे पातशाह सानू समझाउंदे ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जियो तैसा आगे धरे, साहिब भावे सो परवान सो सेवक दरगाह पावे मान। भी ऐसा सेवक सेवा करे ये पंथ दे उत्ते चले जिहदा सारा कुछ हैगा मालक दा, उहनूं अपना आपा समर्पण कर दे, फिर वो सेवक नूं दरगाह च मान। हुण इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ आपां ये पंथ दे उत्ते चलण लई वध तों वध सिमरन करना, गुरबाणी गुरु नूं पढ़ के विचारना खोजना, ताकि सानू जो सतगुरु पंथ दस रहे सानू उहदा चंगी तरह भेद आ जे सानू समझ लग जे, ते वध तों वध आपां सत संगत कर। ये जो सारा भेद गुरबाणी गुरु द्वारा आपां नूं दिता महापुरखां ने, भाई साहब भाई सेवा सिंह जी तरमाला, भी जो सानू गुरबाणी गुरु विच पंथ दसे सतगुरां ने वो पंथ दा बड़ा खोल के गुरमुखां ने आपां नूं भेद दिता। हुण आपां भी इस करके फिर उसे भेद नूं उसे ज्ञान नूं दृढ़ करदे हां भी ताकि आपां भी ये पंथ दे उत्ते चल के अपने जीवन का जो लाहा वो आप लाहा खट के तो खुशी खुशी आपदे घर अपने देश वापस जाइए। सो गुरमुख प्यारिओ इन्नियां बेनतियां इन्ने विचार करदे होए जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ने बख्श देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।